वाहेगुरु। वाहेगुरु। गुरु साहब से सोचे सोच ना हो गई, सोची लाख बार, चुप्या चुप ना हो गई, लाए रहा लिवता, भुख्या भुख न उतरी, बनना पुरियां पार, सह स्याण पर लाखों एक न चले नार। सो इट इज ट्राइंग टू से कि कुछ भी तुम कर लो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि कुछ भी कर लो तुम्हारी बात नहीं बनेगी। वाहेगुरु। But Guru Sahib is not pessimistic, man. He is a living proof कि बात बन सकती है। बातों से नहीं बात बन सकती, मगर बन तो सकती है ना। तभी तो उनकी बनी हुई है, तभी तो बुद्ध की बनी हुई है, तभी तो श्री कृष्णा की बनी हुई है, तभी तो श्री श्री रविशंकर जी की बनी हुई है। बन तो सकती है, मगर ना वेदैर न तपसा, ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चेज्य। मतलब श्री कृष्णा ने भी बोल दिया, ना वेदों से, ना दान पुण्य से, ना यज्ञ से नहीं बात बन सकती। उपनिषद से ना कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एकेन अमृतत्व मानस। वेदांत से न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्या। कुछ भी कर लो। गुरु साहब ने गुरमुखी में बोल दिया, किसी ने संस्कृत में बोल दिया, जीसस ने बोल दिया, यू शैल सी द ट्रूथ। किसी दिन आपको दर्शन हो जाएंगे सच के। यू जस्ट नीड टू थर्स्ट, यू जस्ट नीड टू थर्स्ट, सीक, वेट विद ऑप्टिमिज्म कि बनेगी। लाइक माई यंगर सन हैड आस्क्ड मी, क्या सारी उम्र खुश रहने की एक्टिंग करनी पड़ेगी? ही इज जस्ट अबाउट 15 when he asked me this profound question. क्या सारी उम्र खुश रहने की एक्टिंग करनी पड़ेगी? The answer was yes, 99.9% लोग तो एक्टिंग करते हैं, करनी चाहिए। It's etiquette, it's manners. तो दुखी मत दिखो, wear a smile on your face. Without a smile on your face, you are undressed. So you should wear a smile on your face amidst all your troubles. But do you think कि संभव ही नहीं है सचमुच खुश होना? I asked him. फर्स्ट आई सेड कि हाँ, एक्टिंग तो करनी जरूरी है, इट्स कंपल्सरी, मैंडेटरी कि एक्टिंग करो खुश रहने की। बट डू यू थिंक इट इज इम्पॉसिबल टू बी एक्चुअली हैप्पी? एंड विद अ स्पार्क इन हिज आई ही सेड, नहीं, आप तो सचमुच खुश रहते हो। वंडरफुल। इसका मतलब है तो हुआ तो जा सकता है, सचमुच भी खुश हुआ जा सकता है। इन तरीकों से नहीं, बट कन्विक्शंस, कन्विक्शंस के हो सकता है। The moment you are convinced कि हो सकता है तो हो सकता है। Anybody who becomes rich, from the childhood he was convinced that riches is a possibility. So if you're convinced that it's a possibility, then it definitely will happen. But you will not have to do something abnormal about it. ना हम करता ना मैं किया, ना हूं करता ना मैं किया, अमृत नाम सतगुरु दिया। गुरु जरूरी है, मेंटोर जरूरी है। मेंटोर इज द वन हु गिव्स यू अ प्रूफ दैट इट इज पॉसिबल। Mentor doesn't make some kada prasad and gives it to you.
He just gives you a visible proof that it is possible to be always comfortable, to be satisfied, to be at peace. And how does he give you? When you ask him कि तुम ऐसे कैसे हो, and he tells you that it's possible. You can also be. Every human being is made to be at peace. गुरुमुख कौन होता है? गुरुमुख की डेफिनेशन क्या बताते हैं? गुरु साहब क्या डेफिनेशन बताते हैं? गुरुमुख, गुरुमुख हो जाओ. गोल सिक्खी इज गुरुमुख हो जाओ. Now, Sikhi doesn't mean a religion, if I may submit. Sikhi means studentship. शिष्य हो जाना, student हो जाना. It doesn't necessarily mean Guru Gobind Singh had to, give a particular identity to his, warrior saints, because that time it was a need, political need. Otherwise, Sikhi means to be a shishya, to be a student. Every sadhak is a Sikh. In fact, every sadhak who wants to learn how to live, art of living. So anybody who joins Sri Sri Ravi Shankar ji, if I may submit and you don't mind it, he's a Sikh. Anybody who's a student of Bhagavad Gita is a Sikh. Anybody who is following Jesus Christ and wants to be like Jesus Christ is a Sikh. I mean, if you politicize my statements, you can mind it, but I beg forgiveness. I don't mean to hurt anyone. Everybody is a Sikh who wants to learn life is a Sikh. Isn't it? Vaheguru. So Gurmukh की definition क्या बताते हैं गुरु साहब? Because after all, Guru Bani, any Guru Bani is a Sarab Sanji Bani. After all, Bhagavad Gita is also a Guru Bani, said in Sanskrit by a Guru called Sri Krishna. Isn't it? So Gurbani, as we know Gurbani, because we're Punjabi speaking, Hindi speaking people. So Gurbani says, Gurmukh क्या होता है? गुरमुख मार्ग आखिए गुरमत हितकारी. जिसकी मत जो है गुरु की मत के साथ मिल जाए. ये नहीं कि वो दान देता है कि नहीं, वे नहीं कि वो कड़ा प्रसाद कैसे बनाता है या खीर कैसे बनाता है. नहीं नहीं, भुगत ज्ञान, दया भंडारण, कट कट वाजे नाद, वो है गुरु. गुरु कौन है? गुरु मत क्या है? भुगत ज्ञान. वो खाता क्या है? ज्ञान को खाता है. ज्ञान, अज्ञान नहीं खाता, ज्ञान खाता. भुगत ज्ञान, दया भंडारण. उसके वर्तन क्या है? हाउ डज ही कंडक्ट? compassionately he lives in this life, most compassionately. He doesn't do compassion for the sake of as an exercise. It is his nature to be compassionate. भुगत ज्ञान, दया भंडारण, कट कट वाजे नाद. उसके कट कट में नाद बज रहा है. He is Jesus Christ. Why Jesus Christ? Jesus Christ is known to be Word incarnate. Jesus Christ का नाम है Word incarnate. मतलब वो ओमकार स्वरूप है जीसस क्राइस्ट. ओमकार तो क्रिश्चियंस कोई बोलते नहीं कभी. We are confused by these words. Jesus Christ is known as Word incarnate, means he is Omkar. He is Shankhnad. शंखनाद क्या होता है? शंख में से ओम निकलता है. वो चलते फिरते शंख है. सो गुरु साहब भी यही कह रहे हैं. भुगत ज्ञान, दया भंडारण, कट कट वाजे नाद. वाहेगुरु 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 वाहेगुरु. आप नाथ नाथी
सब जाकी, रिद सिद्ध औरा साध। ये थोड़े वर्ड्स पंजाबी में लिखे हुए वह समझ नहीं आते, बट वेल लेट मी ट्रांसलेट देम फॉर यू टू मेक थिंग्स सिंपल। आप नाथ नाथी सब जाकी, जिसको निरंकार के साथ कनेक्शन बन जाता है ना, नाथ जिसको, वो नाथ है। नाथ केवल शिवजी नहीं है, निरंकार नाथ है। वो जो जिसके साथ, उसके साथ जिसका नाथी बन जाता है, नाथी मतलब जो नकेल डाल देता है, ना उसके साथ हमेशा उसका कनेक्ट बन जाता है। आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद्ध सिद्ध और साध। उसको रिद्धियों सिद्धियों से कुछ लेना देना नहीं होता कि जी उसने ये कर दिया, उसने जादू कर दिया, उसने ये बना दिया। इन सब कुछ नहीं चाहिए उसको। अरे राम, वो एक अलग ही दुनिया में रहता है, अपनी ही दुनिया में। सो गुरुमुख मार्ग आखिए गुरमत हितकारी, पाणा पावे खसम का, निहचाओ निरंकारी। वो निरंकार हो चुका होता है, वो आकार नहीं होता, वो वर्ड इनकारनेट होता है। सो आप भी अगर गुरु से पूछो कि तुम ऐसे कैसे हो, तो गुरु यही कहेगा कि मैं आकार नहीं, मैं निरंकार हूं। मगर हम इतना उलझ जाते हैं कि हम, किसी ने मेरे से पूछा कि आप निरंकारी हो। वो निरंकारी सेक्ट नहीं, निरंकार। जो भी निरंकार से मिल जाता है, उसके लिए इंडिया पाकिस्तान भी मैटर नहीं करते। ही इज बियॉन्ड वॉट एवर इज विजिबल। जो कुछ भी दिख रहा है, जो दिसे सो चालन हार, लपट रहे हो तह अंध अंधार। आप अभी आंखें नहीं खुली हैं, इसलिए यू थिंक वॉट एवर कैन बी हर्ड, what can be understood, whatever can be seen, that is the truth. Not really. Truth is beyond all that can be understood. Truth is beyond all that can be said. प्रणव, ओमकार, ओम सच है। प्रणव उसका नाम है। तस्य वाचकः प्रणव। जो आपका ईश्वर है ना, जो आपका बिलवेड है, जो आपके दिल में रहता है। ईश्वर वही होता है जो आपके दिल में रहता है। बिलवेड, गुरु, उसका नाम क्या है? प्रणव। तस्य, उसका नाम क्या है? तस्य वाचकः प्रणव। उसका नाम प्रणव है। सो टू से, इफ आई मे से, बेगिंग फॉरगिवनेस, गुरु नानक कौन है? गुरु नानक एक ओंकार है। सत्य साई बाबा कौन है? सत्य साई बाबा एक ओंकार है। जीसस कौन है? वर्ड इनकारनेट, एक ओंकार है। तो इसका मतलब ये सब अलग अलग आदमी नहीं है, नहीं है। हम सब लोग क्या हैं? एक ओंकार है। तो हम सब लोग अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। और जो इस एकत्व में समा जाता है, एकमकार हो जाता है, कैवल्य को प्राप्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। कैवल्य, वननेस, he attains to oneness. There is no द्वंद्व left. द्वंद्व, हम तो सारा दिन ही द्वंद्व में ही फंसे हुए। We don't learn to live. सो हमको आर्ट ऑफ लिविंग आ जाती, हम श्री श्री रविशंकर जी के शिष्य हो जाते। ये सब नाम है, आप कहीं से भी ग्रहण कर लीजिए। एकत्व, एकमकार। और एकमकार कौन करेगा आपको? एकमकार
मतलब आपको वननेस कौन दे सकता है? मैं नहीं दे सकता। हाँ, ये आदमी थोड़ा दे सकता, कोई भी गुरु नहीं दे सकता। कौन दे सकता? एक ओंकार आपको एक ओंकार कर सकता है। इसीलिए तो गुरु साहब बोलेंगे एक ओंकार सतनाम। वो आपका सच्चा नाम है। आप गुरुओं से नाम ढूंढते रहते, आपको नाम दे तो दिया, आपको नाम दे दिया, एक ओंकार आपका नाम। आपका नाम, भगवान का नाम नहीं, आपका नाम एक ओंकार है। पर मानने की बात कही ना जाए। जब तक आप मानेंगे नहीं तब तक बात नहीं मानेंगे। आपने तो अपना नाम कोई ना कोई रखा ही हुआ है, बस आप उसी नाम को पकड़े रखते हैं। कि हम नामों में उलझ जाते हैं ना। अब मीराबाई के जो गुरुजी थे, किसी ने बोला, मैं बोला वो तो नाम भूल गया, क्या नाम था मीराबाई के गुरुजी का? उन्होंने बोला रविदास जी हो। वेरी गुड, वेरी नॉलेजेबल मैन। ऐसे मेरा ख्याल है हनुमान जी थे उनके गुरु। नहीं नहीं, हनुमान जी का तो कोई रिलेशनशिप था नहीं मीराबाई से। वो असली पहले, सबसे पहले रविदास, सबसे पहले सूर्य के सिख कौन थे? सूर्य का सबसे पहला सिख कौन हुआ है? सूर्य रवि, उसका सबसे पहला दास तो हनुमान जी थे। तो हम रविदास को सिर्फ एक आदमी मान लेते हैं ना, पर रविदास का मीनिंग सूर्य का दास, सूर्य का सिख। हनुमान जी वॉज फर्स्ट रविदास। सूर्य ने बोला कि मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा अगर मेरे से मेरे शिष्य बनना। तो वो तो इतने एजाइल थे, बच्चे से थे। वो कहते कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे उल्टा चलूंगा तुम्हारे साथ। उल्टा चले वो, पीछे पीछे चले सूर्य की स्पीड से। क्योंकि वो साथ साथ थोड़ा चल सकते अपने गुरु के। गुरु को फेसिंग, ही वॉज वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ सन टू गेट ऑल द नॉलेज। और कौन सी नॉलेज? बातों की नॉलेज नहीं, वो भी निरंकार थे। तभी तो रामदास थे ना। राम तो निरंकार है। हरे राम, वाहिगुरु आदेश तिसे आदेश, आद अनील, अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। ये सब महावाक्य है। हरे राम दिल से निकलते हैं। हरे राम, वाहिगुरु, हरे कृष्ण।